Friends, welcome to our chat so Insti Express. I am Pratyush Kamal, your host for today. In this video, we'll be discussing everything about NIT Warangal. So we have invited a guest from NIT Warangal who is a senior undergraduate student, Ms. Priyadarshini Biswal. And before the introduction of Priyadarshini, I would like to give an overview about NIT Warangal. So जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ. NIT Warangal is the fourth best NIT. Apart from that, it comes in the top 25 list of NITs all across India. And also, NIT Warangal is known for having a very luxurious hostel. It has a capacity of 1,000 to 1,800 per hostel. Also, it has a very great alumni based network. आपने अगर स्कैम 1992 देखा होगा तो उसमें जो सुचित्रा दलाल का जो कैरेक्टर प्ले करा था वो एनआईटी वारंगल के ही एक एलुमनाई ने करा था. उसके अलावा जो पहला माइक्रोसॉफ्ट में जो इंजीनियर हायर हुआ था वो एनआईटी वारंगल की ही एलुमनाई थे. ठीक है. स्टार्ट करते हैं गाइस Q&A सेशन पे. सो उससे पहले प्रिया, कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसके बाद हम क्वेश्चन सेशन पे आते Yeah, sure. So, hi guys, this is Priyadarshini Biswal, a final year undergrad student pursuing chemical engineering and minor in marketing management. So, I'm born and brought up in Bhilai, Chhattisgarh, and I completed my high school in Kota. And currently in my college, I have got to explore quite a few skills by being the vice president of business club. And apart from that, I like to play table tennis, cook, and binge watch Netflix series. हैं. सो नाइस, बहुत शानदार इंट्रोडक्शन था. अब हम आते हैं Q&A सेशन पे इंस्टा एक्सप्रेस के. जी, ये Q&A सेशन का मैं मोटिवेशन बता देता हूँ. तो मोटिवेशन बेसिकली ये है कि बिना बायसनेस के साथ यहाँ पर जितने भी प्रो एंड कॉन्स हैं किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज के, वो आपको बताए जा सकें ताकि आप अच्छा इन्फॉर्म चॉइस ले सकें. बिकॉज इन आवर क्लास 10th 12th वी आर नॉट टॉट अबाउट डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग. ठीक है. सो हमें नहीं पता होता है विच फील्ड इज सुटेबल फॉर अस और कौन सा ब्रांच कौन सा कॉलेज हमारे लिए सुटेबल होगा. सो लाइक इन प्लेस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड फ्लिपिंग अ कॉइन और तब डिसाइड करना, उससे बढ़िया है कि अच्छे से इन्फॉर्म चॉइस लेके तब आप अपने कॉलेज को डिसाइड करो. बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज गोइंग विथ यू इन कमिंग 5-10 ईयर्स. 5-10 सालों में आपके साथ ये चीज़ें रहने वाली हैं. तो ऑब्वियसली आपको प्रो एंड कॉन्स देख के तब डिसाइड करना चाहिए चीज़ों को. तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं कि आपका 4 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा एनआईटी वारंगल में, एंड आपने कॉलेज क्यों चूज करा था अपने समय पे, एंड व्हाट इज द प्रो एंड कॉन्स अकॉर्डिंग टू यू एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. क्या सोच के आपने डिसाइड करा था कि मुझे एनआईटी वारंगल जाना चाहिए एंड हाँ केमिकल इंजीनियरिंग चूज करना चाहिए. व्हाई डिड यू चूज दैट? Right. Talking about my experience, so it has been a roller coaster. There has been amazing ups and there has been downs as well. But okay, I got to learn a few life lessons from the downs as well. So no issues with that. Talking about why I chose this college, so I was not getting a seat in IITs or even BITS. And talking about NITs, I was sure that I had to choose one among the top three or like four NITs. According to my rank, again, I was not getting the circuit branches, which was supposed to be considered like the most competitive ones. Now, in my mind, I had this thing that I wanted to upgrade, and therefore, since out of like NIT Trichy, I was confused between NIT Trichy and Varangal. So I found out that NIT Trichy may there is no system to upgrade your branch. So even though I was getting chemical in both the colleges, I preferred Varangal because I wanted to change it. Although I couldn't because my CG wasn't enough. But yes, that was the reason. ओके. सो ये एक रीजन हो गया कि आपने एनआईटी वारंगल क्यों चूज करा था.
अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा था? एंड लाइक फर्स्ट ईयर में यूजुअली पीपल आर अफ्रेड कि रैगिंग कल्चर कैसा है कॉलेज का, रैगिंग होती है कि नहीं होती है, एंड होती है तो कितने अमाउंट में होती है, क्या लाइक एक लिमिट एक्सीड हो जाता है, या फिर लाइक इंस्टीट्यूट कुछ ऐसा प्रेशर या कुछ ऐसे रूल्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से रैगिंग कंट्रोल में रहती है? सो उसके बारे में आप अगर थोड़ा हमें बता सको तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑनेस्टली मेरे 4 इयर्स के एक्सपीरियंस में और रादर 3 इयर्स के एक्सपीरियंस में कॉलेज में मैं आई हैव नॉट लाइक एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग रिलेटेड टू रैगिंग और नॉट इवन हर्ड ऑफ इट एंड उसके अलावा येस लाइक अगर इफ बाय चांस इट हैपन्स समवेयर इन सम कॉर्नर आई एम प्रीटी श्योर दैट लाइक स्ट्रिक्ट एक्शंस आर बीइंग टेकन बिकॉज हम लोग के मेस में हमारे क्लास के बाहर मेन गेट पे देयर इज लाइक बोर्ड्स एवरीवेयर लीडिंग टू व्हाट ऑल पनिशमेंट्स विल बी ऑफर्ड एंड they are quite strict about it, so I don't think it's a big deal. चल मुर्गा बन। सर मुर्गा बनने तो नहीं आता है, जहाज बन जाओ। बन जा। ओके, एंड आई हैव हर्ड कि 6 बजे के बाद लाइक फ्रेशी जो गर्ल्स होती हैं, जो फर्स्ट ईयर के गर्ल्स होती हैं, उन्हें जाना अलाउड नहीं होता है या हॉस्टल में आ जाना होता है, तो लाइक ये कितना सही है या कितना गलत है? हाँ ये सच है इवन जब मैं फर्स्ट ईयर में थी सो आई रिमेंबर इनिशियली 1 और 2 मंथ्स के लिए रूल सेट दैट 6 PM के बाद 6 PM के पहले तक वी हैव टू कम बैक टू हॉस्टल बट देन आफ्टर 1 और 2 मंथ्स व्हेन यू नो लाइक द फर्स्ट ईयर्स प्रेशराइज द केयर टेकर्स दैट क्योंकि हमारा जैसे लैब वगैरह भी कभी कभी 5:30 to 6 तक एंड होता था तो इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल टू run back to our hostel as soon as possible. So yes, so initially 1 or 2 months I would say that the curfew is there, but then it is extended till 9 p. afterwards. ओके, ओके। सो ये हो गया फर्स्ट ईयर की बातें एंड ये हो गया इनिशियल लाइफ, कैंपस लाइफ की बातें। जो दूसरा सवाल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डे टू डे लाइफ में लाइक वी फेस 3 डिफरेंट थिंग। फर्स्ट द मेसिंग इशू, ठीक है? कोटा में आप भी रही हो तो आपको भी पता है कि मेस का बहुत इशू होता है उधर खाने का। एंड लाइक बीइंग कॉलेज ऑफ साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडियन थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, एंड सिंस ये वीडियो नॉर्थ इंडियन देख रहे होंगे सो वो भी कंफ्यूज होंगे कि यार हमें वहाँ पर खाने का टेस्ट या फिर कैसा लगेगा या फिर कैसा मतलब मिलता है, क्या नॉर्थ इंडियन के लिए अलग कुछ फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो रहती है वो है लॉन्ड्री सर्विस, ठीक है? कि हम कपड़े धुलने के लिए क्या वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा अवेलेबल हैं हॉस्टल में, नहीं है तो क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। जो तीसरी चीज़ है वो इंटरनेट हर इंजीनियर का लाइफलाइन होता है, ठीक है? सो बिना इंटरनेट के इंजीनियरिंग लोग नहीं निकाल सकते हैं, जो निकाल रहा है वो कहीं फिर और मतलब जा सकता है या जा रहा होगा, ठीक है? सो इन 3 चीज़ों पे एनआईटी वारंगल कहाँ स्टैंड करता है एंड क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं इन 3 चीज़ों के मामले में एनआईटी वारंगल? Okay. So talking about food, uh, so I would say like maybe North Indian ही हूँ, but when obviously the taste is pretty new ऐसे देश कहाँ है देश कहाँ है but it's decent. I mean, you would not feel कि हाँ खा ही नहीं सकते. It's manageable, and like they provide non-veg food every day, दोनों time, and so I'm a non-vegetarian, so I didn't have that much of a problem. But yes, apart from that, there is a variety. You know, there is a huge variety you can choose among the dishes, and like honestly, I visited other NITs during Inter-NIT tournament, and I realized that NIT Warangal का खाना way better है. Talking about clothes laundry system, so दो options है laundry के लिए. One is to go and give, so there is a laundry service inside ladies hostel itself. तो if you want your clothes to be washed in washing machines तो आप जाके laundry system में दे सकते हैं. Otherwise second option is cleaning ladies आती हैं तो आप cleaning आंटी जो ladies हैं उनको अगर दे देंगे तो even they charge you monthly, and they will wash your clothes. Okay, so it's the And same for like
इज द सेम फॉर बॉयज हॉस्टल टू? क्या वहाँ पर भी वर्कर्स आते हैं जो क्लीन कर सकते हैं? So for boys hostel, they have a laundry system too. There are no cleaning maids who will come and wash for them, but there's a laundry system, and उनको जाके देना पड़ता है. But mostly, like people prefer washing their clothes themselves. I mean, that is more convenient for them. But you देखने need को to कब pay वापस for that आएगा. laundry system, no? Yeah, yeah. But Yeah. it's quite minimal, like 150 to 200 per month. Mm-hmm. So, but yes, of course, Per if you don't even month want for to how many waste that. clothes? The number of clothes is not limited. Like you can give as many Oh, as you nice. want. Okay. Okay. And And internet. yeah, so talking about internet, yes, the internet speed is decent. Like there are LAN ports in few of the rooms. Like मेरे room में था, and internet speed ranges like at sometimes it's around 100 Mbps, sometimes it's 70-80 Mbps. So it varies, but it's manageable. So like हर रूम में लैंड पोर्ट नहीं रहता है, कुछ रूम्स में रहते हैं या सारे हाँ, रूम्स में रहते हर रूम में नहीं रहता. लाइक थर्ड इयर्स के हॉस्टल में कुछ रूम्स में था, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में नहीं था लैंड पोर्ट. हैं? So फर्स्ट गर्ल्स ईयर वाले हॉस्टल क्या में करते हैं? वाईफाई यूज करते हैं? वाईफाई. यस. ओके, सो वाईफाई की स्पीड कितनी रहती है अप्रॉक्स? वाईफाई की स्पीड एज आई सेड इट रेंजेस, कभी कभी 70, कभी कभी 90, कभी कभी कम भी होती है, 40-50 भी हो जाती है ऐसा. ओके, सो अब हम बात करते हैं कि जो कॉलेज लाइफ में जो दूसरा एस्पेक्ट होता है वो होता है सीनियर्स का. लाइक सीनियर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर एंटायर इंजीनियरिंग लाइफ. ठीक है, सो एनआईटी वारंगल में सीनियर जूनियर की बॉन्डिंग कैसी है, एंड वो कितना हेल्पफुल रहते हैं, कितना अप्रोचेबल रहते हैं अगर हम उनसे बात करें तो? एंड लाइक आपने भी प्लेसमेंट सिनेरियोस एंड लाइक इंटरव्यूज देखे होंगे, इंटर्नशिप एक्सेट्रा के. सो उस समय आपको पता है कि सीनियर्स कितने हेल्पफुल हो सकते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन या फिर जीडी प्रिपरेशन या फिर इन जनरल असाइनमेंट्स, असेसमेंट्स, लैब रिपोर्ट्स एक्सेट्रा के लिए. सो आपके लिए सीनियर्स कितने इंपॉर्टेंट थे, एंड वहाँ पर सीनियर जूनियर बॉन्डिंग कैसा है? ओके. सो यस, मतलब जो इंटरेक्शन है सीनियर्स और जूनियर्स का वो काफ़ी मैटर करता है. एंड आई वुड से कि इवन प्लेसमेंट सीजन के टाइम, मेरे प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के टाइम भी सीनियर्स आर देयर टू हेल्प यू आउट, टू शेयर व्हाट ऑल दे वेंट थ्रू, और लाइक ऐसे प्रॉपर ड्राइव शेयर हो जाती है वेयर आर सीनियर्स शेयर देयर इंटरव्यू experiences and stuff. Talking about bonding, so see, जब हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं कॉलेज, so honestly you will get to bond with your seniors, either if you are a part of any club or a sports team or a branch association. ठीक है, तो इसमें जब आप पार्ट होते हैं तो you can get to bond with your seniors, hang out with them, know them better in a better way. But apart from that, अगर आप इनमें से किसी के पार्ट नहीं हैं तो perhaps you will have to put your own efforts. And so कभी कभी कुछ बच्चे by the time they come to second year then they start bonding over, like student mentorship program जो IIT बॉम्बे में भी है. So that has been recently initiated in our college also. So Nice. that is pretty new. So that will, I hope, promote even better bonding among them. ओके, नाइस. अब हम एक दूसरे एस्पेक्ट पे बात करते हैं, सिक्योरिटी के. एंड सिक्योरिटी का एस्पेक्ट इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लाइक पेरेंट्स जो लाइक गर्ल्स के रहते हैं मोस्टली, उनको एक कंसर्न रहता है कि लाइक इतने दूर जाना एंड सिक्योरिटी का क्या सीन है वहाँ पर एनआईटी वारंगल में. सो उसमें आप अपने कैंपस को कितना रेट करोगी, एंड आप क्या-क्या सजेशंस दे सकते हो, या फिर आपको इन 4 सालों में क्या-क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी हैं? अगर कुछ ऐसा है तो आप बता सकते हैं. Okay. So talking about women's safety, our campus is definitely safe, very safe actually. Like I don't think मतलब ऐसे parents need to worry about their daughters to send them to this college, or I guess इवन इफ लाइक मैं तो तभी मुझे एक्सपीरियंस था 2 साल घर से दूर रहने का, बट इवन इफ दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दैट, दे कैन send their daughters without any tension.
So rating, I would give 9 out of 10. And talking about restrictions, so like for safety, there is a cell called Women's Cell. There is also an association called Lean In Circle. So Lean In Circle is a worldwide famous community started off by the CEO of Facebook, and that circle is also active in our college where we want to promote gender equality and women's safety, etc. So yes, these things are always working on, going on and on. So I would rate it a 9 out of 10. Okay. So, like apart from NIT Warangal तो safe हो सकता है, but NIT Warangal since I've heard कि outskirt में थोड़ा सा, so क्या NIT वारंगल के बाहर भी स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली क्या लड़कियां सेफ हैं उतनी, और लाइक NIT वारंगल के बाहर अगर आप निकलोगे तो आपको वहाँ पर क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, और एंड वहाँ पर लोग इन जनरल कितने हेल्पफुल हैं उस चीज़ को टैकल करने के लिए। सो मैं तो ये बोलूँगी कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इन टाइम स्ट्रिक्ट है, मतलब हम 11 PM तक के हमें कॉलेज मतलब मेन गेट के अंदर आना रहता है। सो 11 PM के पहले तक तो हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि वारंगल अपने हमारे कॉलेज के बाहर का जो एरिया है वो अनसेफ हो। इट्स ऑलवेज बिजी एंड देयर इज़ इनफ, like you won't think that it's unsafe in any way possible. Plus it's not exactly in outskirts, to be honest. It's just 2 hours or 3 hours away from Hyderabad, and it is like well developed at least around the college, like क्योंकि कॉलेज का कैंपस है इसलिए कुछ कुछ डी मार्ट और ये सब ऐसे खुल गए हैं, बट येस इफ़ यू गो अ लिटिल फार देन थोड़ा it might be unsafe. I don't know. I have not been that away, but yes. Baki Warangal is safe. It is really safe. No need to worry. बाकी नाइट आउट्स एक्सेट्रा आप NIT वारंगल में नहीं मार सकते ऐसा, बिकॉज उसके 11 भी बजे से पहले स्कीम्स हैं, लाइक इफ यू नो द स्कीम जुगाड़। एंड मैंने भी किया है, जुगाड़ किया। इंजीनियरिंग में जुगाड़ सीखना जरूरी है, सो सही है। ओके, सो अब लाइक वी टॉक्ड अबाउट वुमेन सेफ्टी, हमने फ्रेशी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के रैगिंग के बारे में बात कर ली। तीसरे जो एस्पेक्ट है वो है स्पेशली एबल्ड या डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए। सो उनके लिए लिफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है क्योंकि लाइक मेनी ऑफ देम कुड नॉट वॉक एटसेट्रा। ठीक है, सो लिफ्ट का क्या सीन है? बिकॉज आई हैव हर्ड समवेयर कि भाई उतने ज़्यादा अच्छे वे में फंक्शनल नहीं रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दिन तक खराब रह जाते हैं। सो NIT वारंगल में लिफ्ट का क्या सीन है या एक्सीलेटर का क्या सीन है? आप एक बार इस पे बताओ। for disabled students, there are always aunties like security auntie or even cleaning aunties हमेशा ऐसे 2-3 रहती हैं, so that they can help them whenever they need. And apart from that, जैसे हमारा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का हॉस्टल इज it doesn't have lift, so they make sure like the caretakers make sure that they are being allotted a room in the ground floor itself. और जैसे हमारा थर्ड ईयर और फोर्थ के कॉलेज मतलब के हॉस्टल में लिफ्ट है, सो इवन इफ बाय चांस दे आर नॉट बीइंग अलॉटेड द ग्राउंड फ्लोर तो वो लिफ्ट यूज कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट कि कितना प्रॉब्लम्स आता है मेंटेनेंस इश्यूज एंड स्टफ, तो लाइक इट्स नॉट दैट फ्रीक्वेंट, आई वुड से लाइक ऐसे 2-3 महीने में हाँ 1-2 बार लिफ्ट खराब हो जाती है, बट देन कुछ घंटों में टेस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम लिविंग इन 7th फ्लोर, सो इफ बाई चांस उस दिन लिफ्ट बंद हो गई तो हमारी तो हालत खराब हो जाती है। हाँ ओके, सो उतने इश्यूज नहीं होते मतलब बन जाते हैं। हाँ, मैनेजेबल। ओके, सो कुछ एलमनाइज फेमस नोटेबल ऐसे एलमनाइज हैं क्या जिन जो आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, ताकि उन्हें पता चले दे कैन रिलेट टू द सिचुएशन कि हाँ भाई ये बंदा NIT वारंगल से पढ़ा था एंड अभी कहाँ है, सो वो अपने इंस्पिरेशंस को उनके साथ जोड़ सकते हैं। सो अगर कुछ ऐसे एलमनाइज हो जिनको आप अभी बताना चाहो तो आप प्लीज बताओ। Sure, sure. So, um, one of the very few notable alumni is Mr. Rao Rimala. So he was the first Indian to be hired at Microsoft, and he was one of the lead developers who worked on the first version of Microsoft. And if you have seen Scam 1992, which is again a very famous series, so the
actress who played Sucheta Dalal is again an IT Warangal alum. That is a scam. And also, since we're talking about women, Mrs. Aarti Subramanian. So she's the Chief Digital Officer at TCS, and she was also ranked third in the top 25 global women leaders in tech. So yes, these are a few. Apart from that, actually, many of our alums are being involved in Tollywood Telugu actors, famous Telugu directors. So and that's why like they keep coming for shoots, movie shoots also. Like a few months back, a famous director came to our college because he felt nostalgic and stuff. So yes, that quite happens. Okay. So, say I'm a student and I got interested in writing lyrics or in the movie direction or in singing. And हमारे alumni अगर उस industry में हैं, so we could definitely approach them and like get their guidance. So उस चीज़ के लिए like for establishing a proper alumni network एनआईटी वारंगल में क्या फैसिलिटीज हैं एंड कैसे कोई बंदा कांटेक्ट करता है क्योंकि obviously 15-20 साल का experience could obviously guide you in a better way in compared to your seniors who are just like either graduated from the college or who are in the verge of graduating. So क्या ऐसा कोई सेल है जो like connection establish करने की कोशिश करते हैं? How is that maintained? Yes, so Excel है alumni association, so that is like student council के through ही वो select होते हैं and so it's their work that they मतलब हमारे जो फेमस alumni हैं जो 10-15 years पहले ग्रेजुएट किए हों तो they either can come for a webinar or you know ऐसे कोई सेशन दे सकते हैं जिस which can be really helpful for our juniors और ऐसे they try their best to form a bond between the alums and the current students. But yes, as you said, like the recent graduates उनके साथ जो communication है या जो ट्रांसपेरेंसी है वाइल डिस्कसिंग एनी प्रॉब्लम्स वो इतने सीनियर एलम्स के साथ नहीं आती है स्टूडेंट्स में. तो आई वुड से दैट उस पर और वर्क हो सकता है, मतलब इट कैन बी इम्प्रूव्ड. अभी का स्टेज इज गुड इनफ बट येस इट स्टिल नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. दैट इज व्हाट Okay. आई फील. ओके एंड लाइक एनआईटी वारंगल सिचुएटेड कहाँ है? आउटस्कर्ट में, सिटी में? जैसे आपने बोला 2 घंटे लगता है हैदराबाद से. एंड आसपास में से क्या क्या चीज़ें हैं? क्योंकि लाइक एज फार एज आई हैव रिसर्च आई गॉट टू नो कि बर्गर किंग नहीं है, ठीक है, एंड मैकडी नहीं है, केएफसी नहीं है, ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो नहीं है, आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है. सो एंड उसके अलावा 10 बजे के बाद आई हैव हर्ड कि एनआईटी वारंगल में कुछ नहीं मिलता है अगर आपको भूख लगी भी है तो, ठीक है. एंड रात में जब नेस्कैफे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो एनआईटी वारंगल ने वो शॉप भी बंद करके रखा है. सो आई वुड लाइक यू टू गिव एन ओवरव्यू कि मतलब चल क्या रहा है एंड लॉजिक क्या था वो 9 बजे से पहले बंद करने का, अगर आपको कुछ आइडिया हो उस चीज़ का तो. एंड कहाँ है एनआईटी वारंगल? सो ओके, सो एनआईटी वारंगल वारंगल में है. Sorry, bad joke. So, ठीक है. so yeah, but I won't say कि वो outskirts में है. As I already stated, it is just 2-3 hours away from Hyderabad. उसके yeah, as you correctly said that there's no Burger King or McDonald's, but then people have to manage with Domino's and KFC. So whatever options they have around. Apart from that, yes, हमारे कॉलेज के अंदर like the authorities in our college believe that NITW students should maintain a good routine, so that's why they should be good students and sleep early. So no need of Okay. night snacks. Perhaps that's why. But yes, Nescafe 9 के बाद बंद हो जाता है, and even food street जहाँ पे बहुत सारे shops हैं college के अंदर, even that closes by 10:30, maximum 11. So yeah, there's no chance of
night ordering, and even talking about Zomato and Swiggy. So if you have to order, you have to either order it before 11, and even if you order it before 11, you'll have to go to main gate and collect. So delivery guys are not allowed inside the campus. ओके, Yes. सो डोंट यू थिंक कि लाइक मेन गेट जाके लाइक कोई चीज़ लेके आना, और अगर आपके पास गलती से भी साइकिल नहीं हो एंड आपको अगर 3-4 बार ऐसे डिलीवरी बॉय को से वहाँ पर खाना लेके आना पड़ेगा, सो आपका 40-50% समय टाइम का रोज़ का वो सिर्फ डिलीवरी लेने और देने में निकल जाएगा। सो तो मैं नहीं लगता वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो हटना चाहिए। एंड लाइक लोग मैनेज कैसे करते हैं? इतना टाइम, एक्स्ट्रा टाइम वो निकालते कहाँ से? Okay. So talking about girls, तो हमारा fortunately जो hostel है, like the moment you enter inside the main gate, तो 2 मिनट के अंदर अंदर लेडीज हॉस्टल आता है। तो वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, हम ऑर्डर करते हैं Okay. तुरंत लेके आ जाते हैं। बट येस, गाइज डू फेस दैट प्रॉब्लम, इसलिए दे प्रेफर कि वो बाहर जाके खा के आ जाए rather than collecting the order and coming back. And adding on to that, luckily the restaurants and all the, like, good cafeterias and stuff, वो काफ़ी कॉलेज के पास है, everything is within 5 to 10 minutes of radius के अंदर ही। So yes, But and why don't yes they it allow? But why don't they allow Swiggy and Zomato people to come inside and deliver? दिक्कत क्या है उसमें? Yes, so one of the reasons was कि pollution campus के अंदर बहुत बढ़ जाएगा. See, these are the reasons which they stated. These are not my reasons. I always obviously want them to come inside, but anyways, तो ये एक reason था. Second reason was कि traffic obviously ऐसे अंदर बाहर होने time accidents के chances risk बढ़ जाएंगे, एंड ये सब रीजंस थे। सो स्टार्टिंग से ही कभी अलाउड नहीं था। बीच में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स ने बहुत रिक्वेस्ट किया था एडमिन को, तो बीच में कुछ दिनों के लिए अलाउड था, बट देन अगेन वो बंद हो गया, सैडली। Okay. सो रूल्स बहुत थोड़े अजीब हैं एनआईटी वारंगल के, जो मेरे को पता है ऐसे चल रहे हैं एंड जितना मैंने पढ़ा है उससे भी। सो लाइक इससे मैं एक कंक्लूजन क्या ये निकाल सकता हूँ, मेरे को नहीं पता वो कितना वैलिड कंक्लूजन होगा, कि लाइक इंटर हॉस्टल अलाउ करते हैं क्या, वो विजिट अलाउ करते हैं क्या? फॉर एग्जांपल क्या बॉयज गर्ल्स के हॉस्टल में आ सकते हैं, गर्ल्स बॉयज के हॉस्टल में जा सकते हैं क्या? या फिर उसका कुछ फिक्स शेड्यूल है? फॉर एग्जांपल आईआईटी खड़गपुर पता नहीं क्यों एक फेमस अलग से एक दिन रखता है 3 महीने में एक दिन या 6 महीने में एक दिन, जहाँ पर स्टूडेंट्स जा सकते हैं एंड उस दिन सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं होता है, बट साल के हर दिन उन्हें लगता है कि सेफ्टी का कंसर्न है, इसके लिए वो अलाउ नहीं करेंगे। सो ऐसा कुछ है क्या एनआईटी वारंगल में भी? सो ये चीज़ तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आई मीन लेडीज़ हॉस्टल का जो मेन गेट है, अगर वहाँ पे भी गाइज आके खड़े हो जाएँ तो हमारी जो सिक्योरिटी आंटीज़ हैं वो विसल करने लगती हैं। सो एंड सेम गोज़ विद गर्ल्स, अगर गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल के आसपास जाएंगे तो वहाँ के गार्ड्स दे डोंट अलाउ एट ऑल, ऐसा है। तो दिस थिंग इज़ स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, लाइक ऐसे एक दूसरे के हॉस्टल में जाना। ओके। या ओके, सो एकदम अलाउड नहीं है। ओके, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं थोड़ा सीरियस टॉपिक पे, एंड वो ऐसा टॉपिक है कि उसकी वजह से हर इंसान को इंजीनियर बनना होता है, क्योंकि उसे लगता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इन कंपेयर टू एनी अदर स्ट्रीम विच ही और शी कुड चूज। फॉर एग्जांपल, आप एमबीबीएस में 1 करोड़ पैसे खर्च करके 10-15 लाख की जॉब लेते हो, बट इंजीनियर 10 लाख खर्च करके 5 लाख की जॉब लेते हैं। ठीक है। सो प्लेसमेंट सिनेरियोज कैसा है एनआईटी वारंगल का? ठीक है, एंड रियल प्लेसमेंट सिनेरियोज, ऐसे पेपर पे तो 1 करोड़ भी दिखेगा, बट आई वांट यू टू गिव द रियल इनसाइट कि एनआईटी वारंगल में जॉब लगती है कि नहीं लगती है। और मैंने सुना है ईसी और सीएस वालों के अलावा बाकी लोग की थोड़ी कम लगती है, तो उस पे क्या लाइक सीन है? हाँ, सो लाइक इस साल की प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स का मैं बता देती हूँ मैं। सो हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट्स स्टार्ट हो जाता है राइट इन द बिगिनिंग ऑफ फाइनल ईयर एंड इट गोज़ ऑन टिल द एंड ऑफ फाइनल ईयर। तो ये एक ईयर लॉन्ग प्रोसेस है, इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन एक्चुअली। सो talking about average placement statistics, so for software companies जैसे कि आपने बोला CS and
EC. So unka average CTC goes around 17 to 18 LPA. And whereas for other branches, it goes around 8 to 9 LPA. Okay. And like average placement in terms of population of student वो कितना अप्रॉक्स है, like इसका एक बार ओवरव्यू आप दे सकते हो? 40%, 60%, 80%, कितने परसेंट स्टूडेंट्स का अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है प्लेसमेंट? ओके वैसे सो लाइक जो सर्किट ब्रांचेस हैं विच इज़ CS इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, तो उनका इट्स above 80%. And for other non-circuit branches it varies. So for example, this year for chemical the record is 60% till date. Okay. And for some other branch, for example for mechanical it's 70%. But like this year COVID has affected the placement statistics a bit, but usually it varies from 70 to 80%, and for circuit branches it's like even better. So Okay. yeah. So अब we'll be talking about startup culture of the institute. ठीक है, startup culture कैसा है भाई? मैंने बहुत एक्टर्स देख लिए, डायरेक्टर्स देख लिए, सिंगर्स देख लिए, ठीक है, बट लिस्ट में मेरे को, मैं बहुत ढूंढा बट मेरे को इतने लोग मिले नहीं जिन्होंने बहुत अच्छा लाइक स्टार्टअप खुद का करा हो NIT वारंगल से या फिर उस फील्ड में हो. सो स्टार्टअप कल्चर कैसा है एंड कितना एक्सपोजर मिलता है? लाइक आप VP रही हो बिजनेस क्लब की, सो यू कुड गिव अ बेटर इनसाइट कि तुम लोग आप लोग कौन कौन से सेशन कराते हो एंड कैसी चीज़ें कंडक्ट होती हैं NIT वारंगल में, अगर किसी को जेन्युइन इंटरेस्ट हो स्टार्टअप में. Okay, so yes, startup culture हमारे कॉलेज में it is fair enough, but yes, it still needs to be improved. That is what I would say. Matlab, there are people who had started their own company in first year itself, and one of my close friends actually never, उसने कभी घर से फिर पैसे लिए ही नहीं because his startup was running so well since first year itself. So there are a few people like that, and who are passionate about it. I think the main problem which occurs whenever a student is interested in it is, even if he or she has the idea, they don't have the courage and the willpower that it will be successful. So for that, a business club conducts various sessions, to even promote the startup culture and to take even more risks, and to make a proper economic analysis of, or how feasible will this idea will be when we'll go for executing it. तो ऐसे सब चीज़ें चलती रहती हैं, बट येस इन द एंड आई वुड से कि वो और इम्प्रूव हो सकता है. इट्स नॉट लाइक कि मतलब आसपास में देखूं तो there are many people who are interested in startup. Mostly people around me, or I would say actually in gen, mostly in colleges, engineering colleges, people just for the sake of job security or stability, they go for placements, or I hope you're getting it. So या yes. ओके, आई डिड गेट इट. सो इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि आपके लाइक कॉलेज के जो कल्चरल फेस्ट या टेक्निकल फेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका नाम क्या है, एंड लाइक आप उनमें से किसी का पार्ट रहे हो तो आप अपना जर्नी एक बार डिस्क्राइब अगर कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक आर देयर एनी मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ योर्स पर्टिकुलरली जो आप यहाँ पर डिस्क्राइब या फिर बताना चाहते हो कि हाँ ये एक मोमेंट था जो बहुत अच्छा था? क्योंकि यूजुअली फर्स्ट सेकंड ईयर में ऐसे मोमेंट्स बहुत आते हैं उन फेस्ट के जो सब किसी के लिए मेमोरेबल होते हैं. So, talking about the cultural festival, जिसे Spring Spree कहते हैं. Spring Spree is one of the largest cultural festivals in southern India. And so yes, it's a 3-day fest. वहाँ पे डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फैशन शोज़ होते हैं, फेमस सिंगर्स आते हैं लाइक लोकल ट्रेन एंड ऑल. So it is fun, and actually it's even like people even enjoy it more in our college is because they have not been used to such freedom. So yes, they have not been used to such freedom, like as I said, 11 p.m. का in time का restriction रहता है. They cannot roam around in the campus at 2 or 3 or 4 in the night. So fests के time they even
इट इज़ क्वाइट न्यू फॉर देम. सो इवन जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मेरा पहला नाइट आउट फेस्टिवल के टाइम ही था. एंड वी वर लाइक रोमिंग अराउंड लाइक क्रेजी, लाइक 6-7 बजे तक. एंड इट्स फन, यस. So Fest. And yes, apart from you guys could not even roam inside the campus at night. रात में कैंपस में भी नहीं घूम सकते हो. नहीं, आफ्टर 11 PM वी आर नॉट Okay. अलाउड. वो लड़कों को भी अंदर आना है. लड़कों का थोड़ा लाइक 1 AM तक, 12 या 1 AM तक ऐसे अलाउ कर देते हैं, बट आफ्टर दैट इवन दे हैव टू गेट इनसाइड. Okay. So you just said that NIT Warangal is safe है. फिर like what's the concern behind allowing the people to roam inside the campus? Closed campus होगा and security people हमेशा वहाँ रहेंगे. फिर किस बात की दिक्कत है? यस. ये ये तो मुझे भी ऐसे समझने में काफ़ी टाइम लग गया. अभी तक मुझे भी उतनी क्लैरिटी नहीं मिली. बट ऑल आई कैन से इज़ अगेन दे वांट NITW स्टूडेंट्स टू फॉलो अ गुड हेल्दी रूटीन. तो वो Okay. नहीं चाहते वो रात को लेट बाहर रहे. एंड ऑल्सो दे फील दैट women are safer inside hostels. I don't know why, but yes, that is the reason which again they mention it when we ask for any. So, Okay. So now talking about your academic loads etc. कि बताया यही जाता है कि जब हम 11th-12th में ऐसे जेई की प्रिपरेशन करते हैं तभी हमें यही बताया जाता है कि 1-2 दिन की पढ़ाई है एंड इंजीनियरिंग ऐसे ही पास होती है. ठीक है. सो NIT वारंगल में एकेडमिक लोड का क्या सीन है, कितना लोड रहता है? क्योंकि मैंने सुना है 80% अटेंडेंस मैंडेटरी रहता है. ठीक है. अभी का तो पता नहीं, अभी तो लोग ज्वाइन करके भी छोड़ सकते हैं. ठीक है. बट अगेन रूल्स बहुत अच्छे बनाए गए हैं NIT वारंगल में. इम्प्लीमेंट कितना होता है ये मेरे को आपसे जानना है कि 80% अटेंडेंस मैंडेटरी, प्रॉक्सी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं. ठीक है. कितना हेक्टिक शेड्यूल होता है. प्रोफेसर्स, मैंने ऐसा सुना है कि प्रोफेसर्स आर नॉट लाइक बहुत उतने अच्छे से वो इनफॉर्मल वे में बात नहीं करते हैं NIT वारंगल के. ठीक है. कुछ इंसिडेंसेस वो देयर रिपोर्टेड कि लाइक दे यूज अब्यूसिव लैंग्वेज एक्सेट्रा. ठीक है. सो उस पे आपका क्या कहना है एंड लाइक एकेडमिक चीज़ों पे? so नॉट जस्ट NITW एक्चुअली, इन जनरल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में थोड़ा कल्चर ऐसा रहता है कि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पढ़ के काम चला लेंगे. बट अगेन इट डिपेंड्स व्हाट ग्रेड्स आर यू एमिंग फॉर. अगर आपको बस पास होना है तो पुल एन ऑल नाइटर, 2 cups of coffee, red eyes, and yes, you'll pass. बट इफ़ यू वांट अ गुड ग्रेड, इफ़ यू वांट अ डिसेंट ग्रेड, तो ऑफ कोर्स एटलीस्ट 1 वीक पहले पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा क्लास में अटेंशन वगैरह देना पड़ेगा. बट एंड ऑल्सो ये जो मंत्रा है विच वी गेट इन आर 11th-12th की बस कॉलेज चले जाओ, चिल है, प्लीज़ ये सब स्कैम है. प्लीज़ डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस. नेवर एवर इन योर लाइफ विल दैट फेज कम वेर यू विल ओनली चिल. सो कुछ ना कुछ प्रेशर तो हमेशा रहेगा ही. एंड टॉकिंग अबाउट अटेंडेंस, हाँ, 80% अटेंडेंस इज़ अ स्ट्रिक्ट रूल, बट देन अगेन इट वेरीज फ्रॉम प्रॉफ टू प्रॉफ. सो जैसे फर्स्ट ईयर में वी हैड अ प्रॉफ हु डिडंट इवन अलाउ like 79% पे भी he took extra classes again so as to maintain the attendance. like ऐसे काफ़ी strict होते हैं कुछ profs की, नहीं सीधे repeat grade दे देंगे. but there are very few like them, and most of the profs like they go for attendance like pen and paper दे देंगे और उसमें हमें नाम लिखना है. so most professors follow that in our first year, तो हम proxy दे किसी सकते का भी हैं नाम आराम लिख से. सकते. Okay, हाँ, nice. बट अगेन फ्रॉम सेकेंड ईयर लाइक केमिकल डिपार्टमेंट, जैसे मेरा डिपार्टमेंट केमिकल है, तो वी हैव बायोमेट्रिक सिस्टम. सो उसमें यू कैन नॉट रियली यू कैन नॉट बी सेव्ड. बट अगेन येस, उतना 80% इशू है, बट देन दे काइंड ऑफ मतलब वो मैनेज कर लेते हैं इफ योर रीजन Okay. इज वैलिड इनफ. ओके. एंड शेड्यूल क्या होता है तुम लोग के क्लासेस का इन जनरल फर्स्ट टू फोर्थ ईयर? ओके. सो मॉर्निंग में ही रहती है मोस्ट ऑफ द क्लासेस. अगर लैब्स हैं तो दे आर यूजुअली इन द आफ्टरनून टाइम. सो 5 डेज़ अगर क्लासेस हैं तो 5 डेज़ में से 1 और 2 डेज़ इट डिपेंड्स ऑन क्रेडिट्स कि हर सेमेस्टर कितना क्रेडिट्स है, कितना हेक्टिक है. तो आउट ऑफ दोज 5 डेज़
ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन फुल डे होता है, अदरवाइज़ इट्स हाफ डेज़। तो केमिकल इज़ चिल लाइक दैट, मतलब थोड़ा चिल ब्रांच है, इसलिए मेरा ऐसा सीन था। टॉकिंग ओके। अबाउट फर्स्ट ईयर्स, तो फर्स्ट ईयर में भी इट डिपेंड्स ऑन सेमेस्टर टू सेमेस्टर, थोड़ा प्रॉफ टू प्रॉफ, बट अगेन इट इज़ मैनेजेबल ऐसा। अब आते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पे। बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब 10th-12th ऐसा उन्हें लगता है कि यार 4 साल 5-6 साल अपने लाइफ का सिर्फ पढ़ाई की है, ठीक है, तब कॉलेज में आके अपन खेलेंगे कुछ, ठीक है, जो पसंद का था वो खेलेंगे। सो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसा है, कल्चरल फैसिलिटीज़ लाइक एनआईटी वारंगल में कैसी है? किसी को अगर गिटार सीखना है या किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को ड्रामा में इंटरेस्ट है, सो हाउ कुड ही बी अ पार्ट ऑफ दैट पार्टिकुलर क्लब? एंड लाइक अलग अलग आईआईटीज, अलग अलग एनआईटीज अलग अलग तरीके का बजट एलोकेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर सम आईआईटीज, ठीक है, इंक्लूडिंग आईआईटी बॉम्बे, जो कल्चरल मतलब इंटर आईआईटी कल्ट के लिए लोगों को ट्रेड में भेजती है, बट इंटर आईआईटी एथलेटिक्स स्पोर्ट्स के लिए वो फ्लाइट से भेजती है। सो डिस्क्रिमिनेशन बहुत आसानी से दिख जाता है, ठीक है, बजट एलोकेशन में। सो क्या सीन है एनआईटी वारंगल का? क्या ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, या सबको ही बजट कम मिलता है, या ज्यादा तो ऑब्वियसली इंडिया है, नहीं मिल सकता है सबको? हाँ, सो लाइक जैसे स्पोर्ट्स कल्चर इन जनरल हमारे कॉलेज में काफ़ी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को लेके ही एक्टिव है। सो ऐसे 5-6 स्पोर्ट्स हैं, द फेमस वन्स लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो इनके लिए भीड़ इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल व्हेन पीपल कम फॉर ऑडिशंस। इवन थ्रू आउट द ईयर जो टीम मेंबर्स हैं वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, इट इज़ ऑल वेरी गुड। बट जैसे कुछ-कुछ स्पोर्ट्स हैं जैसे लॉन टेनिस या सो कोर्ट्स एंड ऑल एवरीथिंग फैसिलिटीज़ वाइज़ है सब। देयर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, टेबल टेनिस, टेबल, रैकेट्स, एवरीथिंग। बट येस, थोड़ा जो एंथू है स्टूडेंट्स में, वो थोड़ा नॉन फेमस स्पोर्ट्स को लेके मुझे थोड़ा कम दिखा। बट अगेन टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएशन, लाइक ऐसे डिस्क्रिमिनेशन इन फंडिंग का एक्सपेंस, तो आई वुड से कि जैसे इंटर आई टी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं तो कॉलेज स्लीपर ट्रेन्स के थ्रू ही भेजता है, फ्लाइट्स तो बात की बात है। स्लीपर ट्रेन्स में ही जाते हैं सब, वेदर इट इज़ एनी स्पोर्ट, लाइक इवन फेमस स्पोर्ट वाले भी स्लीपर में ही जाते हैं, सो ओके। दैट इज़ वेरी क्लियर इन एवरीवन्स हेड। ओके। सो सबको ही खराब एलोकेशन मिलता है, मतलब यस। उतना ज़्यादा नहीं मिलता। ओके, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन पे। जिस तरह पहले भी मैंने देखा था, ओवरव्यू देखा था कि रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े अजीब हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट भी हैं एनआईटी वारंगल के। तो 4 से 6 लोग मैंने सुना है एक रूम में रहते हैं फ्रेश ईयर में, फर्स्ट ईयर में। सो वो सही है क्या? एंड मतलब ऐसा ये फैक्ट है क्या? एंड कितने लोग यूजुअली रहते हैं रूम, मतलब कितना बड़ा रहता है? क्या रूम बस इतना बड़ा रहता है कि आप कमरे के दरवाजे को खोलोगे तो रूम खत्म हो जाएगा, या थोड़ा उससे ज़्यादा मतलब स्पेस रहता है रूम में? ओके, सो टॉकिंग अबाउट गाइस, तो गाइस को कभी 4 एक रूम में रहने की ज़रूरत नहीं है। इट्स 3 और 2, और नहीं, सिंगल रूम तो कभी नहीं मिलता उन्हें, 2 और 3। ओके, सिंगल रूम एंड फोर्थ ईयर में भी नहीं मिलता? नहीं, ओके। Dasa people do get very luxurious hostels. Dasa व्हाट इज दिस people, दासा? yeah, so Dasa is a different category. So they are non-residential Indians. They take SAT exam and they get admission through that. तो जैसे हमारे कॉलेज में जो हमारा टोटल स्ट्रेंथ है उसमें 10% people are Dasa. तो Dasa boys hostel is built, separately. So ओके। they are really good. Talking about girls, तो girls में तो there's no such differentiation. दासा और जेई वाले दोनों ही सेम हॉस्टल में रहते हैं, and yes, first year में 4 girls live in a single room, which is actually quite hectic. मतलब ऐसे थोड़ा cumbersome, ऐसे second year, third year, fourth year जाते जाते then you get double rooms. So girls को भी कभी single room नहीं मिलता final year तक, and but the double rooms are spacious enough. I guess I'm just a play date to you.
you don't need to worry about ऐसा space का कुछ issue. Okay. Like And हम what's लोग तो about कूलर वगैरह सब रखे हैं तो okay, allowed है क्या? हाँ मतलब कूलर कूलर्स अलाउड है. ओके ओके लाइक हम भी जब कॉलेज में जब आए थे तो हमें एक लिस्ट दिया गया था एंड बताया गया था हमने उस पर साइन करा था कि हम म्यूजिक सिस्टम नहीं रखेंगे वी वोंट बी हैविंग प्रोजेक्टर कुछ नहीं रखेंगे बट सब लोग सब चीज़ रखते हैं रूम में ठीक है बट वो अलाउड नहीं है हमारे यहाँ सो अब हम एक और चीज़ पे बात करेंगे सेक्स रेशियो पे IIT वारंगल के ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े होते हैं 11th-12th में टीचर्स ने बहुत बड़े बड़े चीज़ें दिखाई रह जाती हैं ठीक है सो मैंने ये पढ़ा एंड पर्टिकुलर मैंने कहीं ऑनलाइन रिसोर्स से पढ़ा कि 80% जो लड़कियां रहती हैं दे आर फ्रॉम साउथ इंडिया तेलुगु एक्सेट्रा ठीक है सो रेस्ट आर 20% आर नॉर्थ इंडियंस सो रेशियो और ऊपर से सेक्स रेशियो थोड़ा खराब है ऊपर से NIT है तो और ज़्यादा खराब है एंड ऑब्वियसली टॉप 5 NITs में है तो थोड़ा और ज़्यादा खराब है ठीक है सो कुल मिलाकर कितना ज़्यादा खराब है सेक्स रेशियो या कितना अच्छा है in compared to IITs, top IITs या कुछ और colleges. I would say sex ratio is better in our college as compared to IITs. IITs में और लड़कियां काफ़ी कम रहती हैं. Hmm. And so it is 1:5. ऐसा Yeah, है. okay, nice. Yeah, ये that's सही है. better, right? है हाँ, ना? बहुत obviously. At least And it's better than 1:14 of IIT Bombay or Delhi or exactly, ठीक है. exactly. It's way better, yeah. And yes, girls में, in fact, even in boys, majority जो जनता है, that is South Indian, and obviously because NITs have 50% state quota reservation, so number of students will be more in that particular state. तो जैसे NIT वारंगल में if you have आंध्र प्रदेश का home state quota. So if you are from Andhra Pradesh or Telangana, so it will be easier for you to get into the college. तो वो चीज़ है. But yes, like it was fun to interact with South Indians as well. They are sweet people. Okay. एंड लैंग्वेज की कितनी दिक्कत होती है बीइंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया ठीक है वहाँ पर टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करना स्टाफ्स के साथ कम्युनिकेट करना एंड ऑल्सो लाइक आफ्टर टॉकिंग टू फ्यू पीपल फ्रॉम साउथ इंडियन कॉलेजेस आई गॉट टू नो कि मतलब मेजोरिटी ऑफ जो वहाँ पर पोस्ट हैं पोजिशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो टॉप पोजिशन जिनका डायरेक्टली जो उनका काम करने का तरीका या फिर जो वो काम होगा वो मतलब नॉर्मल स्टाफ से या फिर IIT वारंगल के बाहर के स्टाफ से है तो वो लोग यूजुअली साउथ इंडियंस ही होते हैं उन पोस्ट को होल्ड करते हैं बिकॉज दे आर द वन हु नीड टू टॉक टू डिफरेंट पीपल नॉर्मल जनता जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक्सेट्रा की है तो क्या NIT वारंगल में भी ऐसा है कि नॉर्थ इंडियंस यूजुअली बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े पीवास नहीं होल्ड करते हैं क्या ऐसा एक तरीके का पैटर्न है या फिर NIT वारंगल में ऐसा नहीं है एंड लिंगो प्रॉब्लम कितना वहाँ पर ज्यादा है ओके सो हाँ जैसे फर्स्ट ईयर एकदम स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है लाइक आई रिमेंबर जब मैं न्यू गई थी एंड मैंने अपने लॉन्ड्री आंटी मतलब क्लीनिंग आंटी को कपड़ा दिया था तो शी वॉज अगेन एंड अगेन सेइंग पापा पापा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो पापा क्यों बोल रही है मेरे पापा के बारे में पूछ रही है एंड देन लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि पापा मतलब बेटी इन तेलुगु सो यू गेट टू नो या बट देन अगेन it's only a problem for a short time period with time basic जैसे अयो या जो भी ऐसे होते हैं कॉमन ऐसे तेलुगु लैंग्वेज तो समझ आ जाता है प्लस टॉकिंग अबाउट PORs in like the highest positions in any association I don't think there is discrimination on the basis of culture or religion so if the team decides or the team feels that yes, the student is deserving or better in any way, so they are being selected. Even like हमारे college में total 32 clubs हैं, and out of them, I'm pretty sure like more than 50% club presidents are North Indians only. So Okay. that is at least not true for our college. Okay. And are there any special days etc जो NIT वारंगल में कोई सेलिब्रेट होता है कुछ अलग दिन या फिर ऐसा जो इन जनरल बाकी कॉलेजेस में नहीं होता फॉर एग्जांपल एक कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट डे भी हो सकता है that would be a special day and that would be unique day for every college
ठीक है सर, तो ऐसा कोई दिन होता है 91 का, क्या उसमें कुछ लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या कोई लिबरेशन मिलती है, या फिर उस दिन भी नॉर्मल रूल्स अप्लाई होते हैं? Okay, so talking about special events होते हैं, I can say. तो जैसे हर दो दो या 2.5 2 और 2.5 मंथ्स में एक स्पेशल मेस का कल्चर है, तो उसमें इवन गर्ल्स कैन गो टू बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ मेस, एंड इवन नो, बॉयज़ कैन नॉट कम टू गर्ल्स मेस. ओके, सो तो उस दिन द फूड इज़ रियली गुड, यू नो, लाइक एक दिन के लिए विल फील दैट ओ mess is amazing. So okay, and apart from that, जैसे events होते हैं, तो there is a youth festival conducted in January of in the month of January every year. तो वहाँ पे ऐसे food stalls competition होते हैं, various other competitions like उसमें फिर fashion week भी होता है, तो it is mandatory कि सारे जो फाइनल ईयर्स हैं वो फैशन वीक में पार्टिसिपेट करें. देयर इज़ इवन एथनिक नाइट, सो उसमें भी सारे Okay. फाइनल ईयर्स एकदम अच्छे से वेल ड्रेस्ड होते हैं. देयर इज़ फेयरवेल नाइट. तो ये सब जो अक्यूमुलेशन है सारे नाइट्स का, दैट इज़ लाइक मेजर पार्टिसिपेशन इज़ फ्रॉम फाइनल ईयर, बट हम जूनियर्स जाके भी मज़े लेते हैं. सो यस, एंड Nice. ऑल्सो उस दिन फिर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता रात का. ओके, सो बट ये सारी चीजें तो तुमने सुनी होगी ना, लाइक यू हैवंट लाइक डन इट फाइनल ईयर में, तो अब तुम हो, अभी तो कोरोना चल रहा है, सो आर यू मिसिंग इट? Yes, I mean, मैं Okay. कॉलेज नहीं गई, it's been more than a year. But ठीक है, it is for everyone, so we all are going through it, तो can't help. एंड कुछ फेमस लिंगोज एक्सेट्रा जो एनआईटी वारंगल में यूज होते हो, जो वहाँ पर यूजुअली लोग मतलब स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें दिक्कतें नहीं हो, ऐसा इस तरह यहाँ पर चल रहा है, तो मतलब ऐसे कुछ कुछ लिंगोज हैं जो यूज होते हैं, इंस्टी फॉर and that Yes. insti buddy word also comes from the very same lingo of IIT Bombay, calling it as insti. Yeah, so Yeah, ऐसे yeah. कुछ. So एक बहुत फेमस लिंगो है लाइट. ठीक है, मैं ये वर्ड बिल्कुल यूज़ नहीं करती थी वहाँ जाने से पहले, वहाँ जाके मैंने सीखा. एंड वी से इट सो ऑफन, लाइक हर तीसरे सेंटेंस में लाइट. और अब एंड मतलब एक टाइम पे ऐसे आ गया था कि आई हैड स्टॉप माई सेल्फ, यू नो, मैं ऐसे खुद को ऐसे वार्न करती थी कि अब लाइट नहीं बोलना है, फिर सब चीज़ें ही लाइट हो जाएंगी. तो या, लाइट इज़ अ वेरी फेमस वर्ड, एवरीवन यूजेस दैट. Okay, nice. Okay, so now we'll be closing the session. ठीक है, इंटरव्यू सेशन हम लोग क्लोज करें, इंटरेक्शन सेशन. So before closing the session, दो चीजें होंगी. सबसे पहले तो I would be asking you to give the marks of to your college. ठीक है, 10 में से कितने मार्क्स तुम अपने कॉलेज, आप अपने कॉलेज को देना चाहोगी, ठीक है, बेस्ड ऑन बहुत सारे प्रो एंड कॉन्स जो आप ऑलरेडी बता चुकी हो, एंड प्लस आपको पता भी है, ठीक है. And उसके बाद I would request you to request to our viewers to subscribe, like and share the channel. Yes. To be honest, like, you know, this rating will vary from person to person. Everyone has their own sets of experience. So in my view, I would give an 8 out of 10. And one thing I would like to mention is that NIT Warangal has more than enough resources and opportunities for you to learn and grow. But one advice from my side will be for all the viewers is that before you join a college, make sure that you are not confused, or you have not researched properly, or there is some sort of uncertainty or, you know, regret in your mind. Make sure that you have watched such honest college review videos on YouTube, or you have researched you have asked your school seniors who have been in that place. Okay. And yes, InstaBuddy is doing amazing work by helping you to choose one of the most important decisions of your life. And choosing the right college will have a long lasting impact on you, not only professionally but also at a personal level. So make sure that you're liking this channel, share it among your friends, subscribe to this, and enjoy the awesome content. And thank you, Pratyush, for having me here. Yeah, thanks a lot for being our guest. We hope कि like आगे भी ऐसे guidance देने के लिए हम videos बनाते रहेंगे, and we could also invite you anytime later for the preparation strategy of interview and all. So इसी के साथ I would like to close the session, ठीक है, and अगर अच्छा लगा हो तो please like, subscribe and share.